Students, today we will deal with two special type of curvilinear coordinate. First one is the cylindrical and second one is the spherical curvilinear coordinates. So let us start with cylindrical curvilinear coordinates. So for cylindrical curvilinear coordinate, let us consider a point P whose projection in xy plane be point Q xy. सो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट इन द स्पेस पी एक्स वाई जेड और उसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो क्या होगा क्यू एक्स वाई. सो दिस इज द डायग्राम शोन टू यू. So this is the point P in the space P x y z and this is the projection of point P in xy plane, that is q x y comma 0, you can say 0 also. So let the cylindrical coordinates of point P are rho, phi and z. So to cover all the points in the space, हमने rho, this is our rho, this is the radial distance greater than or equal to 0. This is angle phi. Phi varies from 0 to 2 pi and z from plus infinity to minus infinity. Plus infinity to minus infinity. So अब how will we get this x, y and z? This is rho. If I take resolve part of rho in the direction x direction, in this, what will we get? Rho x, this length as, we get this length as x is equal to rho cos of the angle which rho, the radial vector, makes with the x axis. So it is x rho, x is equal to rho cos phi. और अगर हम इसको y एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करते हैं तो दिस लेंथ इज y इक्वल टू रो साइन फाई. सो इट इज़ क्लियर. इस एक्सिस के लॉन्ग इट इज़ रो कॉस फाई और इस एक्सिस के लॉन्ग इट इज़ रो साइन फाई. सो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई? रो कॉस फाई. और इसकी क्या, y की क्या वैल्यू आ गई? रो साइन फाई. तो यहाँ पे जो ये Q पॉइंट है इसमें x की वैल्यू रो कॉस फाई है और y की वैल्यू रो साइन फाई. अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, दैट इज z. सो वी हैव x इज इक्वल टू r cos y and y is equal to r sin phi and z as z. So is it clear? So curvilinear, in case of cylindrical coordinates we represent x by x is equal to rho cos phi, y is equal to rho sin phi and z is equal to z. और ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया. Now let us draw the cylinder. अब अगर हम इसको cylindrical coordinates को अगर हम represent करें, this is the cylinder, this is the base, this represent the circle, this is the radius rho, this rho is the radial vector, this phi. अब phi 0 to 2 pi सर्कल को कवर करेगा. दिस इज z लेंथ. और अगर आप देखो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज ई रो कैप, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में. फिर z डायरेक्शन में जो आपके पास आपने इसकी डायरेक्शन ली हुई है, दिस इज ई जेड कैप. सो ई रो कैप क्लियर in the radial vector direction and ez cap in the z direction. and अब phi, अब एंगल चेंज होगा along this circumference of the circle. जैसे ही ये लाइन चेंज होगी, पहले phi कुछ और था, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, तो आपके पास इस सर्कल की टेंजेंट के along क्या चेंज होगा? e phi cap. so this represents e phi cap. so e rho cap डायरेक्शन क्लियर है along रेडियल वेक्टर. दिस इज along z वेक्टर, z डायरेक्शन में ई जेड कैप, और दिस इज ई फाई कैप विथ द चेंज इन एंगल फाई. सो ई फाई कैप. सो दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर्स फॉर cylindrical coordinates. So let us calculate arc length of an element in cylindrical coordinates. We know that in cylindrical coordinates अभी हमने किया x is rho cos phi, y is rho sin phi and z as z. So let r radial vector is equal to xi cap plus yi cap plus yj cap plus zk cap. Put the value of x, y, z. So now r is
r vector is the function of rho, phi and z. So what is dr vector? Total change in r vector with respect to, अब r is function of rho, phi, z, so it is del r vector upon curly r vector upon curly rho into d rho plus curly r vector upon curly phi into d phi plus curly r vector upon curly z into dz. So this is the total change in r vector dr vector. So dr vector is, put the value of curly r by curly rho, curly r by curly phi, curly r by curly z. So curly r by curly rho, differentiate r with respect to rho phi, so it is cos phi I cap plus sin phi j cap. So this is with respect to rho. Next is curly r vector upon curly phi, derivative of this with respect to phi, it is minus cos का साइन हो जाएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई और जे का सॉरी जेड का जीरो. नेक्स्ट इज कर्ली आर बाय कर्ली जेड, इट इज के कैप ओनली, सो इट इज डी जेड इंटू के कैप ओनली. So this is clear. Now collect the coefficients of I cap, j cap and k cap. So we have dr vector. So अब आर्क लेंथ हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ds स्क्वायर इज इक्वल टू, हम किससे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं उसको, dr डॉट dr. So dr डॉट dr डॉट प्रोडक्ट, so calculate dot product, we will get this. So ds square is equal to d rho square plus rho square d phi का whole square plus d z square. So let this is h1 square d rho whole square plus h2 square d phi whole square plus h3 square dz whole square. अगर हम इसको अपने उससे कंपेयर करें तो इसमें आपके पास h1 को हम स्क्वायर फैक्टर्स, h1 को हम क्या लिख रहे हैं, h रो, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट. अब h2 किसके इक्वल है, कंपेयरिंग दिस रो के इक्वल. सो h5 इज रो, this is equal to h2 square is equal to rho square, so h2 is equal to h5 which is equal to rho. अब h3 is equal to 1, so hz is 1. तो इसमें स्केल फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, h1 स्केल फैक्टर इज 1, h2 इज रो, h3 इज 1. सो h1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h रो को, h2 इज h5 एंड h3 इज hz. नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मीन हमने पहले क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर्स, और फिर हमने दिखाना है कि यूनिट वेक्टर्स को जब हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव यू 1, और अगर हम म्यूचुअली उनको डॉट प्रोडक्ट लें तो दैट विल गिव यू 0. सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो लेट अस कैलकुलेट यूनिट वेक्टर्स. सो यूनिट वेक्टर्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ रो ई रो कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ फाई चेंजिंग फाई दैट इज ई फाई कैप, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड ई जेड कैप. सो टेंजेंट वेक्टर पहले अगर हम निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू रो कर्व, 3 कर्व है हमारे पास, रो कर्व, फाई कर्व एंड जेड कर्व. सो इट इज कर्ली आर बाय कर्ली रो. सो कर्ली आर बाय कर्ली रो, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, इट इज कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप. नेक्स्ट इज टेंजेंट वेक्टर टू फाई कर्व, चेंजिंग इन जिस डायरेक्शन में फाई चेंज हो रहा है, सो इट इज डेरिवेटिव कर्ली आर अपॉन कर्ली फाई. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, सो इट इज माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप और जेड का 0. नेक्स्ट इज टेंजेंट वेक्टर टू जेड कर्व, दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू जेड, कर्ली आर वेक्टर अपॉन कर्ली जेड. सो दिस इज ओनली के कैप. सो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड. सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द रो कर्व इज ई रो कैप. So it is curly r vector upon curly rho divide by its magnitude. So magnitude कैलकुलेट किया तो 1 आ गया. So e रो कैप हमारे पास क्या आ गया,
cos phi I cap plus sin phi j cap. So you will have to remember it that E rho cap is equal to cos phi I cap plus sin phi j cap. Next is E phi cap. E phi cap unit tangent vector along phi curve. So it is curly r vector upon curly phi divided by its magnitude. Again its magnitude is rho. सो रो से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रो से रो कैंसिल हो जाएगी. सो इट इज़ माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप. आपने इसको भी याद करना है और याद करने का तरीका क्या है, ई रो को अगर आप लर्न करो तो इसी का डेरिवेटिव है ये. सो इट इज़ कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, इसी के परपेंडिकुलर है. तो इट इज़ माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई जे कैप. और नेक्स्ट ई जेड कैप इज़ curly r vector upon curly z divided by its magnitude. Magnitude is 1, so it is k cap. So next we will prove that the system is orthogonal. We will take the dot product. We will show that they are mutually perpendicular. So E rho cap into E phi cap, we will get 0. Again E phi cap into E z cap dot vector is again 0. Dot product of E z cap dot with E rho cap again 0. So this will prove that the cylindrical coordinate system is orthogonal. So is it clear? Next special type of curvilinear coordinate is spherical coordinate system. So again in spherical coordinate system, let us consider a point P x y z in a plane whose projection in xy plane is q xy 0. So this is the same. Next, let us consider the spherical coordinates to be r, theta and phi. To cover all the points in the space, let r, this is the radial vector r, OP, this is always greater than or equal to 0. phi again, स्फीयर का अगर हम देखें तो बीच में एक सर्कल होता है, तो phi रिप्रेजेंट दैट सर्कल एंड दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई सर्कल के लिए. और उसके बाद z कोऑर्डिनेट के लिए जो ये आपका थीटा है विद रेडियस वेक्टर, दिस वेरीज फ्रॉम 0 to पाई. आप देख सकते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो सर्कल है वो आपका 0 to 2 पाई फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा जो उसकी हाइट होगी 0 to पाई. सो अगेन हाउ विल यू फाइंड x, y and z in this? This is r OP. If you resolve OP, as this makes an angle theta with z axis, if you resolve this along this direction, you will get this value as this length as r cos theta. So z is r cos theta. और इसी का रिजॉल्व पार्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अब z एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी जो लाइन होगी वो z xy प्लेन में लाई करेगी, और उस लाइन के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा r का, r साइन थीटा. तो अगर यहाँ पे r cos थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया, r साइन थीटा. सो इज इट क्लियर? सो इफ दिस इज r साइन थीटा, इसको अगर मैं x एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करूँ r साइन थीटा को, इट मेक्स एन एंगल फाई. सो व्हाट विल इट बिकम? So this is become r sin theta with cos phi. Again this is r sin theta. इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करती हूँ, this makes an angle phi. This makes an angle phi with this line. So what about this component? This is r sin theta के साथ cos phi, और इसके परपेंडिकुलर r sin theta के साथ sin phi. तो अब देखो ये y की वैल्यू आ गई, दिस इज y एंड दिस इज x. सो इज इट क्लियर? अगेन हम कैसे करेंगे, दिस लेंथ इज r, इसको z एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करती हूँ तो r cos थीटा इज z, उसके परपेंडिकुलर आ जाओ तो कोई भी लाइन जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी. सो इट इज़ r साइन थीटा. r साइन थीटा को अगर मैं इधर रिजॉल्व करती हूँ विच मेक्स एन एंगल फाई, तो इट विल बिकम r साइन थीटा कॉस फाई, और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करती हूँ तो इट इज़ r साइन थीटा साइन फाई. सो आई विल गेट r x एज r साइन थीटा कॉस फाई, दिस इज माई x, and y is r sin theta sin phi, this is y,
and this is z, r cos theta. So these are the values of x, y, z in spherical coordinates. So next we will find arc length in spherical coordinates. So again दो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप dr को निकालो और dr डॉट dr निकाल लो, अदरवाइज यू विल राइट एज dx ds स्क्वायर आर्क लेंथ एलिमेंट एज dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर प्लस dz होल स्क्वायर. How will you find value of x, y, z? So first we have value of x as r sin theta cos phi. So dx is total change. So it is differentiate with respect to r dr sin theta cos phi as it is, plus उसके बाद r as it is sin theta का cos phi cos theta d theta cos phi as it is. नेक्स्ट किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos phi को. सो इट इज़ माइनस साइन फाई डी फाई आर साइन थीटा एज इट इज़. अब आपने y को डिफ्रेंशिएट करना है, टोटल चेंज डी वाई. सो फर्स्ट डी आर साइन थीटा साइन फाई एज इट इज़ प्लस आर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस आर साइन थीटा एज इट इज साइन का यहाँ पे आएगा सॉरी कॉस फाई डी फाई. सो इट इज़ क्लियर. अब आपने z का डी जेड टोटल डेरिवेटिव डी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा डी थीटा. पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड. वट विल वी गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग? वी गेट डी आर का होल स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी जेड डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का होल स्क्वायर. अगर हम इसको कंपेयर करें, एच वन स्क्वायर डी आर स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी फाई स्क्वायर, तो आपके पास एच वन किसके इक्वल है, एच आर के, दैट इज़ वन. कोफिशिएंट इसका क्या है, वन. इसका कोफिशिएंट आर स्क्वायर है, तो एच टू इज इक्वल टू एच थीटा दैट इज आर, और एच थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो देयरफॉर एच थ्री इज आर साइन थीटा. तो इस केस में हमारे पास स्केल फैक्टर्स आ गए, एच आर वन, एच थीटा आर, एच फाई आर साइन थीटा. नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो अ ऑर्थोगोनल सिस्टम. ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए हम उसी तरह, हमारे पास तीन कर्व हैं, एक आर के अलॉन्ग और एक थीटा के अलॉन्ग और एक फाई के अलॉन्ग. सो वहाँ पे अब हमने स्मॉल आर वेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल आर हमारे पास ऑलरेडी है. तो लेट कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो लेट आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो इट इज आर साइन थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ जेड. सो वी हैव एक्स की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप. So next we will calculate tangent vector to R curve. So tangent vector to R curve is differentiate capital R vector with respect to R. So it is del R vector upon del R. So we have with respect to R, अगर हम इसको differentiate करें, it is sin theta cos phi I cap, sin theta sin phi j cap and cos theta k cap. अब हमने यूनिट वेक्टर बनाना है. सो ई आर कैप विद द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू आर कर्व डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड जब आपने कैलकुलेट किया इट इज़ वन. सो व्हाट विल वी गेट, ई आर वेक्टर इज इक्वल टू ई आर कैप इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप. सो दिस यू विल हैव टू रिमेंबर ई आर कैप. नेक्स्ट इज ई थीटा कैप. सो ई थीटा निकालने के लिए लेट अस कैलकुलेट टेंजेंट वेक्टर टू थीटा कर्व. सो इट इज करली आर वेक्टर अपॉन करली थीटा. सो डिफरेंशिएट आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो इट इज आर कॉस थीटा कॉस फाई आर कॉस थीटा साइन फाई आर साइन थीटा जे के कैप. सो वी विल गेट divide e theta cap divide with its magnitude is r. So after dividing we will get e theta cap as cos theta cos phi I cap plus cos theta cos sin phi j cap minus r sin theta k cap. So this is e theta cap. This also you will have to remember. Next is e phi cap.
E phi cap is, next is E phi cap. So what is E phi cap? E phi cap is curly r vector upon curly phi divided by its magnitude. So E phi, E r vector upon curly r vector upon curly phi, differentiate with respect to phi, we have this, and divide by its magnitude. So after dividing, the magnitude is r sine theta. After dividing, we will get E phi cap as minus sine phi I cap plus cos phi j cap. This also you have to remember, and to prove now it's a orthogonal system, so we have to prove they are mutually perpendicular. Dot product of E r cap with E theta cap 0, E theta cap with E phi cap 0, and E phi cap with E r cap as 0. So first we will calculate dot product of ER vector, ER cap upon into E theta cap. So it is ER cap dot E theta cap. So after calculating, we will get 0. Similarly, after calculating E theta cap with E phi cap, we will get 0, and E phi cap dot E r cap also 0. So spherical system is also orthogonal. So this ends with the today's presentation. Thank you for watching.